Training is an organized activity for increasing ट्रेनिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी आपके सिलेबस में भी होगा पूरे बीबीए में कहीं सिलेबस में जरूर होगा ये ट्रेनिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी फॉर इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ people for a definite purpose for increasing the knowledge and skills of people for a definite purpose. It is a systematic procedure. It is a systematic procedure for transferring the technical know-how for doing specific jobs. Excuse me, ma'am. Transferring के बाद Responsibility. Transferring the technical know-how मतलब टेक्निकल चीजों को ट्रांसफर करने का जो सिस्टमैटिक प्रोसीजर है दैट इज नोन एज ट्रेनिंग. ओके technical know-how. हाँ नो हाउ के बीच में एक हाइफन है नो नो KNOW नो हाइफन हाउ for doing specific jobs. Next heading, objectives of training. Objectives of training. Point number 1, bullet points में फटाफट लिखते जाओ. To increase the knowledge of workers. To increase the knowledge of workers in doing specific jobs. To increase the knowledge of workers in doing specific jobs. Second point, to impart new skills. To impart new skills among the workers. To impart new skills among the New workers. skills. उसके बाद New skills among the workers so that they learn quickly. So that they learn quickly. To bring about a change in attitude of workers. To bring about a change in attitude of the workers. Next, to make the workers handle materials, machine, equipment. To make the workers handle machine, material and equipments efficiently and check wastage of time and resource. And excuse me, ma'am. हाँ बोलो. Efficiently के बाद Efficiently and check wastage of
resources. Next, to reduce the number of accidents. To reduce the number of accidents. And last point, to prepare workers for higher jobs. To prepare workers for higher jobs. By developing advanced skills in them. By developing advanced skills in them. क्या हुआ? क्या छूटा बोलो? क्या है? जैसे? Done? Next topic लिखिए, significance of training. सॉरी मैम, लास्ट पॉइंट एक बार और बता दीजिए प्लीज. To prepare workers for higher jobs. To prepare workers for higher jobs by developing advanced skills in them. By developing advanced skills in them. थैंक यू मैम. अब नेक्स्ट लिखो, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग. इसको भी बुलेट पॉइंट्स में डाल के लिखते जाइए. नंबर 1, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग. फर्स्ट पॉइंट में लिखिए क्विक लर्निंग. क्विक लर्निंग. सेकेंड पॉइंट, हायर प्रोडक्टिविटी. Third point, standardization of procedures. Standardization of procedures. मैम आपकी आवाज कट रही है. Okay, wait. Standardization of procedures. Next, less supervision. Less supervision. प्लान काम नहीं कर रहा है क्या? Less supervision. Next, economical operations. Next, economical operations. Next, higher morale. Higher morale. Moral के बाद E है, moral नहीं है, moral नहीं है. Higher morale. Next, better management. Better management. ठीक है? अब क्विकली देखो इस इन जितना पॉइंट्स लिखे हो कुछ है ऐसा जो नहीं समझ आ रहा है. ऐसे हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, बट हायर मोरल. See, when you know your work, higher morale. What does morale mean here? Morale means the overall attitude that you have towards your workplace, including everything: the environment, your colleague, your senior, everything. Like तुम्हारा एक morale होगा यहाँ पर इस workplace यानी इस college को लेकर के. The way you have your you have your peer group, the way teachers teach, the policies of college, how easy or difficult it is to do a work in. तो overall एक attitude होगा जो तुम कुछ सोचते होगे इस college के बारे में. That is the same thing. Now, when a worker is trained, what happens is that when you are trained, you are more confident, right? You know your work better. So in that case, your morale means your attitude will improve. Okay? Anything else? नहीं? और बताइए. Standardization of procedure. Standardization of procedure.
अच्छा हाँ, ये एक पॉइंट तुम लोगों को नहीं पता होगा। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब हुआ यहाँ, कोई बता सकता है? Modern technology. डिविजन ऑफ वर्क, नो। मैम स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है किसी स्टैंडर्ड, कोई बेंचमार्क फिक्स होना। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स। हाँ, थोड़ा बहुत यू आर क्लोज टू बीइंग करेक्ट बट नॉट करेक्ट। और बोलो ऋतिक। नहीं, नो। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि अगर यू यूज समथिंग फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर आप एक ड्रेस लेते हैं, ठीक है, एंड यू लाइक दैट ड्रेस बिकॉज यू लाइक द क्वालिटी, यू लाइक द फैब्रिक, यू लाइक द स्टिचिंग ऑफ दैट ड्रेस। दूसरी बार लिया, आपको स्टिचिंग में एरर मिला। तीसरी बार लिया, आपको कुछ और एरर मिला। ये नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी अ रूल कि आप एकदम स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, no matter how many times you use that product you find the same satisfaction। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है अगर आपके वर्कर्स ट्रेंड नहीं। अंडरस्टूड? और ये खासकर जो ऑपरेटिव एरियाज होते हैं वहां पे दिक्कत हो सकती है कि अगर आपके वर्कर्स ट्रेन नहीं होंगे तो देयर कुड बी डिस्क्रिपेंसीज इन बैच वाइज। अलग बैच में अगर इस बैच में ये वर्कर काम किया, शिफ्ट चेंज हुआ, दूसरा बैच आया, उस बैच के वर्कर कम ट्रेंड है, तो ह्यूमन एरर भी तो प्रोडक्शन में क्रीप करता है, चाहे जितना भी आप मशीन से काम करा लीजिए, राइट? एंड मशीन इज यूज्ड बाय मैन। किसी मशीन को कितनी देर चलना चाहिए उसका एसओपी फिक्स्ड होता है। ट्रेंड वर्कर नहीं होगा और 10 मिनट पहले बंद कर दिया तो प्रोडक्ट खराब होगा कि नहीं होगा? दिस इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर कि वर्कर्स एक तरीके से ट्रेंड होंगे तो उनको पता होगा कि इसको करने का एसओपी क्या है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। नहीं, हाँ, मैक्सिमम आउटपुट की बात नहीं है। मान लो 100 प्रोडक्ट ही निकलता है और अगले बार भी 100 ही प्रोडक्ट निकला, लेकिन वो 100 प्रोडक्ट पहले के स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा है, so where is the question of maximum output? It's a question of standardization of product। हाँ, ये तुम कह सकते हो कि आपके एम्प्लॉइज अगर ट्रेंड होंगे तो ज्यादा आउटपुट की तरफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जरूर सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज। पहला वाला हमने लिखा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अब आप लिखेंगे एम्प्लॉइज के लिए। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंस। First point, confidence. Second point, new skills. Third point, promotion. Fourth point, higher earning. Fifth point, adaptability. Sixth point, increased safety. Increased safety. इसके बाद देखो ट्रेनिंग मेथड्स, adaptability, क्या अडेप्टेबिलिटी का मतलब समझ में नहीं आया? अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर तुम ट्रेन हो, तुम अगर काम जानते हो और अगर तुम ट्रेन हो, तो अगर वर्क मेथड चेंज हो गया, देखो आए दिन ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होता रहता है, नए बिजनेस प्रैक्टिसेस की वजह से चेंज इज इनएविटेबल, लेकिन अगर तुम ट्रेंड हो तो यू विल नॉट बी फियरफुल ऑफ चेंज इन वर्क मेथड्स। तुम डरोगे नहीं। If you are trained, if you are learned, you'll not be fearful of any change in the organization or the change in work practices and work methods. Okay, you will still be confident of your knowledge and of your skills. तो एक जो trained worker होता है उसकी adaptability एक untrained worker से ज्यादा बेहतर होती है। ठीक है, देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब वर्क मेथड्स में बताए थे ना ऐसे, ये ग्राफ बना के वैसे बना लीजिए आप लोग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का। बस थोड़ा सा है ये,
ट्रेनिंग मेथड्स, इनकी क्लास आपका ऑनलाइन हुआ था इसलिए ऑन द जॉब मेथड्स यहाँ डालिए, ऑफ द जॉब यहाँ, ठीक है। ऑन द जॉब मेथड्स एंड ऑफ द जॉब मेथड्स, ठीक है। ऑन द जॉब मेथड में एक्सप्लेन तो सारा हो चुका है क्लास में, राइट। पहला मेथड लिखिए कोचिंग, कोचिंग COACHING कोचिंग। सेकेंड मेथड लिखिए अंडर स्टडी, अंडर स्टडी। थर्ड मेथड लिखो जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन। मिस हुआ कुछ, क्या हुआ? जॉब रोटेशन। उसके बाद लिखिए मल्टीपल मैनेजमेंट, मल्टीपल मैनेजमेंट। नेक्स्ट कमिटी असाइनमेंट्स, कमिटी असाइनमेंट्स। डन। ऑफ द जॉब में आइए, ऑफ द जॉब में पहला लिखिए लेक्चर, लेक्चर। नेक्स्ट स्पेशल कोर्सेस, स्पेशल कोर्सेस, कोर्स, स्पेशल कोर्सेस। नेक्स्ट स्पेशल प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग। नेक्स्ट सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को और क्या कहा जाता है? ब्रैकेट में लिखिए टी ग्रुप ट्रेनिंग, टी ग्रुप ट्रेनिंग, टी 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 इट्स जस्ट अ टी, टी टी ग्रुप ट्रेनिंग। ओके। नेक्स्ट सिमुलेशन मेथड्स, सिमुलेशन SIMULATION, सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब जो रियल एनवायरनमेंट है उसको कॉपी करना, सिमुलेट करना मतलब तुलना करना, एक जैसा बनाना। सिमुलेशन मेथड्स, सिमुलेशन मेथड्स में 3 आता है, लिखिए पहला केस स्टडी, केस स्टडी। सेकंड मैनेजमेंट गेम्स, मैनेजमेंट गेम्स, मैनेजमेंट गेम्स। थर्ड इन बास्केट एनालिसिस, इन बास्केट, इन और बास्केट के बीच में एक हाइफन दीजिएगा, इन बास्केट इज लाइक दिस, इन बास्केट एनालिसिस। ठीक है, सो दीज वर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स, अंडरस्टूड। टॉपिक चेंज करिए, लिखिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट मोस्टली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के तरीके से होता है। देखिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट, द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, the achievement of objectives of an organization
depends to a great extent on the quality of its managers. On the quality of its managers. Companies with similar raw material equipment and technical know-how show different results because of the quality of its executives. Ma'am, of its executives. दो लाइन और है, लिखिए. Quality of management explains. Quality of मैम इसी में management कंटिन्यू करना explains. है. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो. इसी में कंटिन्यू करना है आगे. इसी में लिखना है. ओके. ये तुमको क्या लिखा रहे हैं हम कि मैनेजमेंट का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है. मैनेजर डेवलपमेंट बताए थे ना वो. देखो दो लाइन और है, लिखो. Quality of management explains the difference in price policy, labor policy, inventory policy, marketing policy, etc. So, better the managers, better the organization. Better the managers, better the organization. ठीक है, हो गया. यहाँ तक आपको इतना लिखना जरूरी था. और ऑफ द जॉब मेथड्स आर, मोस्ट मेथड्स ऑफ द जॉब आर यूज्ड फॉर ट्रेनिंग मैनेजर्स. अब पेन डाउन करो और थोड़ा सा डिस्कशन पे आओ. ये बताओ क्यों लगता है तुम लोग को, या क्या रीजंस लगता है, व्हाई इज द डेवलपमेंट ऑफ अ मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंट, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वो अच्छे से काम करेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो अच्छे से मैनेज करेगा लोगों को, मैनेजमेंट अच्छा करेगा. और क्या रीजंस हैं जिससे मैनेजरियल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है. अगेन यू आर गोइंग टू द सेम पॉइंट, है ना. ये पॉइंट छोड़ के एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, वेरी गुड मैनेजमेंट, ऑल दीज पॉइंट्स आई एग्री. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा that is the same thing, na? It comes in communication, yes. शोकेस करते हैं कंपनी के बिहाफ में, उस कंपनी का नेचर कैसा होगा, फिर उनकी कैसी है. But this is a vague answer. Do you think so? I'm asking exact points. Behavior. Same thing. हम reasons पूछ रहे हैं. कारण बताओ. खुद सोच सकते हो? हाँ? Question ये है कि why do you think is managerial development important? क्यों organizations इतना पैसा देकर managerial development का process सस्ता नहीं होता है? They are costly methods. So why does an organization spend this much on developing manager, or why is there so much focus on development of managers, apart from the fact that they will do good in return to the company? और reasons बताइए. क्योंकि हम उन्हीं के ऊपर सारे एम्प्लॉय डिपेंडेंट रहते हैं और वो एम्प्लॉय में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसको मिला के चले, एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को फील करें.
लोगों का ये आ जाता है आंसर Because ma'am, For the better satisfaction management of is the customer. फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। एक पॉइंट अलग आया कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा गया, ठीक है। और देखो the methods, see, business has changed a lot in the past few decades, and pandemic has made you to see it very first hand, right? Change in technology as a student आप इससे बेहतर क्या समझ सकते हैं कि पैंडेमिक में देखिए कि टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हुई या टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा बिजनेस को आगे बढ़ाने में। Had it not been for technology, everything would have just stopped. The business could not have flourished. ये जितना ऑनलाइन चीजें, ऑनलाइन एजुकेशन, इतना था क्या ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड, ये बताओ था क्या इतना? ये सब ने एडवांटेज किया, बायजूस हो या अकेडमी हो, थे पहले भी, ऑनलाइन ट्रेनिंग पहले भी होती थी, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पहले भी होता था, लेकिन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट जस्ट टैप्ड द अपॉर्चुनिटी दैट पैंडेमिक गेव इट। किया कि नहीं किया? तो क्या इसके पीछे दिमाग नहीं लगा? वो दिमाग किसका लगा? उसके मैनेजर्स का लगा। इसीलिए मैनेजरियल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता है कि इंटरनली तो हम समझ रहे हैं कि वर्क को वो बेहतर मैनेज करेगा, बट एक्सटर्नली आल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ रोल टू बी प्लेड बाय देम। द टेक्नोलॉजी इज समथिंग, सी आईटी कंपनीज में क्या होता है, आपको एक प्रोजेक्ट में डाला जाता है, उस पे कोई टेक्नोलॉजी से काम किया जा रहा है, 6 महीना यू बीन ऑन दैट प्रोजेक्ट एंड नाउ यू शिफ्टेड टू अनदर प्रोजेक्ट व्हिच इज बीइंग वर्कड ऑन बाय अनदर टेक्नोलॉजी, यू नीड टू लर्न दैट टेक्नोलॉजी, ठीक है? आपको वो टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, and the more you learn of it, the more learned and more skillful you become. Technology changes very fast in business nowadays owing to its dynamic nature, and since technology is changing like this, the managers have to have information and knowledge about changing technology and they need to upgrade themselves काम करने के लिए। Understood? एक टाइम था जब ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है, ये ट्रेंड में नहीं है कि बड़ा कंप्यूटर यूज करना नहीं आता है। नाउ दे आर वर्किंग ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। अंडरस्टूड? ये भी एक रीजन है कि मैनेजरियल डेवलपमेंट करने का बहुत बड़ा कारण है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज होती है। इसको हाँ, सो नॉट एम्प्लॉई, तुम कस्टमर्स बोलोगे तो ये चलेगा, वो पॉइंट पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स देखे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हर 6 महीने में टीवी में कुछ एनहांस्ड टेक्नोलॉजी आ रही है। स्मार्ट टीवी है, दैट इज बिकमिंग स्मार्टर देन पीपल, राइट? फोन 6 महीना यू नीड अ न्यू फोन, एनहांस्ड टेक्नोलॉजी। वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में तो सबसे ज्यादा तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अगर मैनेजर अवेयर ही नहीं है तो वो सिर्फ अपने बिहेवियर से थोड़ी ना मैनेज कर लेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। यू नीड टू हैव नॉलेज एंड दैट नॉलेज हैज टू बी यूज्ड स्किलफुली, बट नॉलेज इज इंपरेटिव। समझ में आई बात? दूसरा पॉइंट जो तुमने बोला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज़ हाउ टू चेंज as per the situation, how to change the system for management. बिल्कुल बिल्कुल ये बोल सकते हो, इसका यही मतलब हुआ कि आप अपने, अब देखो पैंडेमिक में क्या हुआ, पहले तो जो ऑफलाइन ट्यूशंस कोचिंग भी थे जहाँ पे कि बच्चे भरे रहते थे, जो लोग अडेप्ट नहीं कर पाए पैंडेमिक के प्रॉब्लम्स को, क्या वो ट्यूशन कोचिंग सर्वाइव कर पाए? नहीं कर पाए। आज भी मार पड़ी है, रिसरेक्ट अभी तक वो नहीं कर पाए। There are coachings which could not resurrect, and there were people who tapped this opportunity that they had. लेकिन इसके लिए तो दिमाग लगा। देखो पटना के टीचर खान सर है, शायद तुम लोग वीडियो देखे होंगे, उसने अपने उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि had it not been for pandemic तो हम तो YouTube पे आते नहीं,
क्योंकि वो ऑफलाइन ही पढ़ा रहे थे। अब वैसे वैसे कितने टीचर्स होंगे, मान लो मेंटर्स हैं या आकाश है, उसके अपने सिर्फ टीचर्स देखो जिनका बहुत बड़ा कोचिंग चलता होगा, बट दे फेल टू सर्वाइव एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, क्योंकि ये तो बिजनेस है, एक बार आप बाहर हो गए तो आपको ग्रिप पकड़ने में बहुत टाइम लगेगा, राइट? सेकंड पॉइंट दैट यू सेड इज कस्टमर, वी हैव बिकम स्मार्टर। अब आप देखिए चेंज कैसे हुआ। एक टाइम था जब आप टीवी खरीदने, आपके पापा लोग से पूछेगा, टीवी खरीदने जाते थे तो उनको बोला जाता था कि ठीक है सर बैठिए, अभी 2 लोग और हैं, हम दिखा के फिर आपको दिखाते हैं, और तुम अभी चले जाओ आदित्य विजन, भटक जाएंगे लोग तुम्हारे पीछे, ले लेंगे नहीं, खरीदवा के भेजेंगे। This is how the impact of business has changed, and this is not just about selling that product, it is also about keeping you a loyal customer to their company, कि गोदरेज आपको इतनी बेहतरीन सर्विस दे, नॉट जस्ट बिफोर सेल सर्विस बट आफ्टर सेल सर्विस आल्सो। तुमको एसी सर्विसिंग कराना है, दे विल कॉल यू एंड रिमाइंड यू दैट योर एसी नीड्स अ सर्विसिंग, दिस इज योर टाइम, सो इवन इफ यू आर बिजी यू विल फील कि अच्छा मेरा काम तो हो रहा है, सच गुड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज। वो उसके मार्केटिंग पॉलिसी का पार्ट है, ठीक है? उससे भी बेहतर मार्केटिंग पॉलिसी उसका मैनेजर अच्छा होगा तो वो ड्राफ्ट करेगा। You getting my point? And customers have become smarter. If you have a problem right now, you can Google it immediately. You will call customer care. You will do a lot of things, which wasn't the case few years back, few decades back. Consumer protection भी हम जानते हैं. There are a lot of things that we are aware of now. So it's not easy to misguide the customers now. Okay, they are loyal to you today, but if you show slack in your behavior, they'll be loyal to someone else. हम कस्टमर हैं, हमको 5 रुपए में अगर कोई चीज सस्ती और बेहतर क्वालिटी मिलेगी, I'll quickly change. Brand loyalty इसमें exception है. If somebody is like very happy with some brand, तो वो उसमें एक exception आ जाता है. Otherwise, change in consumer behavior एक बहुत बड़ा factor है. Zara, W, Aurelia, these are all kurti brands, right? No, not. I'm talking about just the women apparel in that, because women apparel in market, in context of Indian market, is one of the most fastest changing markets. Okay, that और जैसे soft toys, India में बहुत ज़्यादा नहीं है, but in foreign countries, in European countries, the design of soft toy is also one thing that changes very rapidly. So we have seen that these organizations, these are big organizations, but they work continuously to remain big, right? They launch a design for a particular season. They cannot showcase it in the next season. They need to sell it off. Discount पे क्या बिकता है? The designs which were not sold, which were meant to be sold this season, but could not be sold. They'll sell it through their shops, and then the rest they'll sell it in these big billion days and all through online. Understood? So customer satisfaction maintained रखने के लिए अब अगर manager जैसे merchandise manager H&M की, it's a European brand, अगर वो constant planning और research नहीं करे कि how is the change of behavior, how is the behavior of the customer changing in the market, और आप वही चीज प्रोड्यूस करते रहेंगे क्या? No, you can see the change in women's design. Once it is in market, everyone will wear the same design of different brands, of course. Lekin the design is there, so you need to keep yourself in pace with the design, right? Third point, labor relations. देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन समझते हो? तुम लोग को पढ़ना है 5th सेमेस्टर में, अभी भी है? नहीं, नॉट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस नहीं। See, the kind of relationship that arises between the employer and the workers because of the nature of work and the relationship of wage is known as industrial relation. ठीक है?
this relationship is not just between the employer and the worker, but also between a trade union, an employer and trade union. नहीं, कंपनी मर्ज नहीं हो जाती. रिलेशन, जैसे पीयर रिलेशन तुम्हारे इस क्लास में क्या है? तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है? इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब तुम्हारे एम्प्लॉयर के साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है? तुम अगर ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट करती हो तो तुम्हारा रिलेशन एम्प्लॉयर के साथ क्या है, वर्कर के साथ क्या है? ठीक है, दिस इज नोन एज इंडस्ट्रियल रिलेशंस. The concept of industrial relation was very simple earlier, but just as the business changed, this has also changed. This has become dynamic over the years. पहले जहां हम सिर्फ एम्प्लॉयर वर्कर ट्रेड यूनियन मतलब एक नैरो कॉन्सेप्ट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के अलग अलग रूप को, लेकिन इन दो ही एंटिटीज को कंसिडर करते थे. Now everything in broad sense, we can say that everything which is affecting industrial relations, even from outside, like code of discipline, grievance redressal, wage fixing machinery, ठीक है, लेबर कोड, इंडस्ट्रियल कोड, नेशनल ट्राइब्यूनल, ये सब लेबर से रिलेटेड होता है, वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट. जो ऑर्गेनाइजेशंस लेबर इंटेंसिव हैं, लाइक माइंस, फैक्ट्रीज व्हिच आर लेबर इंटेंसिव, वहां आए दिन वर्कर के साथ कुछ ना कुछ इशू होता रहता है. ठीक है, अब देखो, तुम लेबर को ज्ञान तो नहीं दोगे ना लॉ का, नहीं. You need to tackle the person according to the IQ that person has. So the manager, the HR manager, has to be skillful enough to use his knowledge wherever required and use his art of negotiating with people wherever required. You need to check the complaints of workers, any grievance of workers as soon as it arises. A wise manager will do so. वरना वो बहुत बड़ा रूप ऑर्गेनाइजेशन में ले सकता है. बड़ा रूप जैसे स्ट्राइक, लॉकआउट, और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत खतरा हो सकता है, प्रोडक्शन पूरा बंद हो सकता है. आप जनरली देखेंगे कि लोकल्स को लेकर के भी काफी इशू होता है. किसी स्टेट में अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है and you fire that local person, there will be a whole team of जो मैनेजमेंट को ब्लेम करेगी कि आप जानबूझकर you're doing this deliberately, you're targeting on the local people. ऐसी चीजें होती रहती है. इसीलिए एक मैनेजर को इतना डेवलप होना चाहिए कि वो इन चीजों को बहुत स्मार्टली हैंडल कर सके. तो इसीलिए बिहेवियर जो चीजें सिखाई जाती है बहुत हाई लेवल की होती है, क्योंकि ट्रेड यूनियन का भी जो लीडर होता है वो बहुत स्मार्ट होता है. अंडरस्टूड? देखो, एक छोटी सी बात बता देते हैं, याद रहेगी तो ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपको कोई फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन हुआ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, किसी भी कारण से आपका ट्रांसफर हो गया, आपको प्रमोट नहीं किया गया, आपका वेज नहीं बढ़ाया, आपके साथ वाले अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, जो भी डिससैटिस्फैक्शन, फीलिंग ऑफ इनजस्टिस, ये जब बढ़ता है तो बनता है कंप्लेंट. मैनेजर की गलती बता रही है, अगर तू ये छोड़ दे तो कितनी बड़ी बात हो सकती है. डिससैटिस्फैक्शन, ये बड़ा बना कंप्लेंट. कंप्लेंट का मतलब है कि तुमने ये फीलिंग जो डिससैटिस्फैक्शन की हुई, ये किसी को भी बताई, अपने सीनियर को बताई, अपने जूनियर को बताई, अपने साथ वाले को बताई कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है. यहाँ भी सॉल्व नहीं किया गया, ये बढ़ा और बना ग्रीवेंस. मतलब जब ये प्रॉपर अथॉरिटी के पास चला गया कंप्लेंट, अथॉरिटी मतलब द वन हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट्स रिड्रेसल, तब ये बना ग्रीवेंस. उस अथॉरिटी यानी मैनेजर ने भी अगर निग्लेक्ट कर दिया, then this becomes dispute in the organization. This dispute can lead to two disastrous things for an organization
which is strike and लॉकडाउन नहीं लॉकआउट, ठीक है। ये होता है स्ट्राइक वर्कर करता है, लॉकआउट मालिक करता है। जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है ताला लगा देता है। फिर इसमें बहुत सारा आप देखे होंगे एग्जाम्पल, पुरानी मूवीज अभी उठा के कभी देखना, मिल वगैरह में मालिक ने ताला लगा दिया, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। चलो Translation हो रहा होगा sorry, control somebody situation. Lock out the factory. knock out the factories. There are provisions in Industrial Disputes Act